اتوار کا دن تھا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، سب اپنے کمرے میں ابھی سو رہے تھے۔ فاہرہ بیگم صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوئی، ملازمت سے کہہ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی بولتی ہے، پھر ڈرائیور کے ہمراہ زوار کے گھر کا رخ کرتی ہیں۔ مسلسل راستے میں فاہرہ بیگم کو ایک سوال پریشان کر رہا تھا، میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ زیورات کی اتنی خطاؤں کے باوجود میں کیوں نہیں چاہتی عالیہ زیورات پر خلا کا کیس درج کرے؟ میں عالی کی محبت میں ایسا کر رہی ہوں یا پھر اپنے مومن بیٹے کے عالیہ کو دور کرنے کے لیے؟ انہیں سوچے میں کشمکش میں سفر اپنے اختتام پر پہنچا اور گاڑی زیور کے حسن کے گھر کے پاس رکی۔ زیور کا ملازم فاہرہ بیگم کا مہمان خانے میں بیٹھاتے تھے، خود زیورات صاحب کو بلانے کے لیے زیور کے کمرے کی رخ کرتے ہیں۔ فاہرہ بیگم مہمان خانے میں کھڑی تصویروں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ چائے کے ٹالے لیے کامن دعوت ہے۔ فاہرہ بیگم ملازم کو دیکھتی ہوئی کہتی ہے، ارے اس کلر کی یاد ضرورت ہے، زیور صاحب کو مہربانی بتائیں کہ میں سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں بیگم صاحبہ، اور تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ اچھا سنو، ملازمہ چائے پیش کرنے کے بعد جانے لگتی ہے۔ فاہرہ بیگم آواز دے کر اسے روکتی ہوئی بولتی ہے، جی بیگم صاحبہ، جب تک زیور نہیں آتے میں امنہ بیگم سے ملنا چاہتی ہوں، ان کو بولو۔ فاہرہ بیگم چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہتی ہے، بیگم صاحبہ ابھی یہاں نہیں ہوتی، 1 مہینہ ہونے والے۔ ملازمہ ڈرتے ڈرتے الفاظ چبا چبا کہتی ہے، کیا مطلب یہاں نہیں ہوتی تو پھر کدھر ہے؟ ملازمہ انتظار نظر آتی ہے، کہتی ہے، بیگم صاحبہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، وہ جی صدف بیگم کے کہنے پر زیورات صاحب ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے ہیں کیا؟ اتنے میں زیور کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ملازمہ وہاں سے جانے کی کرتی ہے۔ السلام علیکم، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں بیٹا۔ اور زیور بمکلف صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کرتی کی بازو کو فولڈ کرتے کہتے ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا؟ دیکھو بیٹا، میں تم سے جاننا چاہتی ہوں کیوں آئی ہوں، مگر میں یہاں صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے آئی ہوں۔ تم نے دوسری شادی کر لی، گھر پر سارے، مگر ان ماں بیٹی کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہیں جس سے تم غافل ہو۔ آنٹی وہ میری ذمہ داری تھی، مجھے اس بات کا انکار نہیں ہے، مگر اب وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اور آشا میری بیٹی ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ عائلیہ کو بولیں اسے میرے پاس بھیج دیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم یہ مت بولو، آج بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ اور رہی بات عائشہ کی، تو اگر اس سے اتنی خیر خواہ ہوتے تو دھکے مار کے گھر سے بے دخل نہیں کرتے، تو ختم کر دوں گا بھی یہ رشتہ اور نکاح۔ جو لڑکی میری ماں کو مارنے کی کوشش کر سکتی ہے، زہر دے سکتی ہے، میری بیوی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں کا لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ اگر تم ماں کی اتنی خیر خواہ ہوتے نا تو یوں اولڈ ہاؤس میں منتقل نہ کرتے۔ نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی، مگر تم نے کیا کیا؟ اپنی آسائش اور سکون کی خاطر بھی ماں کو ہی گھر سے بے دخل کر دیا۔ عالیہ واقعی میں تمہاری قابل نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص اپنی ماں کا نہیں ہاتھ رکھ سکتا، مجھ کو لمحات میں ساتھ نہیں دے سکتا، وہ کسی اور کا کیا ہو سکتے ہیں۔ چلتی ہوں میں اب، خلا کے کاغذات تمہیں بہت جلد مل جائیں گے، خدا حافظ۔ فاہرہ بیگم اتنا بول کر وہاں سے جانے کی کرتی ہے۔ زیور کچھ بول نہیں پاتا، شاید اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ٹھنڈی آ بڑھتے ہوئے اپنا سر کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی پونچھ سے دبوچ لیتا ہے، پھر اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ عالیہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف، جب امون کی آنکھ کو ملتے ہوئے کچن کا رخ کرتے ہیں، جمائی لیتے پوچھتے ہیں، عالیہ امی جان کو پتہ ہے کدھر گئی ہیں؟ اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے تو خود وہ کچھ پتہ نہیں ہے، ملازم تاری تھی، حالہ بہت جلدی میں تھی اور ڈرائیور کے ساتھ کی ہیں، شاید کوئی کام نہ ہو۔ عالیہ کی چائے کے کپ میں ہنڈلتے کہتی ہے، جی اچھے دن، صبح صبح ایسے بھی کیا ضروری کام تھا؟ خیر میں کال کر کے پتہ کرتا ہوں، اور آپ بھی بتا ناشتہ کروں کہ نہیں؟ موڈ نہیں ہے، بس ایک چائے کپ کا، اور میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حالہ آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی اور وہ بات کرنے کی؟ عالیہ روحن سے لہجے میں بولتی ہے، بیٹا کچھ فیصلے کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہوتی ہے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ تم واقعی سچ کہتے ہو، شخص بہت بدل چکا ہے، جانتی ہو اس نے اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس شفٹ کر دی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ جان؟ وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں، وہ ایسے کر چکا ہے بیٹا۔ جانتی ہو عالیہ بیٹا، انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتے ہیں نا تو میرے بچے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی رشتہ نبھا نہیں سکتا۔ ہر رشتہ بھیڑ برہم توڑ دیتا ہے، جس کی جوڑنے میں شاید عمر بیت جاتی ہے مگر مکمل طور پر جوڑ نہ سکے۔ میرے بچے یہ رشتہ ہی احساس سے ہوتے ہیں، جب احساس ختم ہو جاتے ہیں نا مضبوط سے مضبوط رشتوں کی بھی بنیاد نیری پڑ جاتی ہے، پھر ایک دن کچے گھر کی طرح گر کر زیر ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ بالکل حالہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں تو زاوی کے بدلتے تیوروں کو پہلے دن سے ہی پہچان چکی تھی، مگر آپ یقین نہیں کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، مجھے خود سے زیادہ تم پر یقین ہے، بس ماں ہوں نا، بعض دفعہ طلاق کے دبے اور معاشرے کی باتوں سے ڈر جاتی ہوں، مگر اب میں اس شخص کی اصلی جان کر اس مقام پر پہنچی ہوں کہ تو عدالت کی مدد سے اس شخص سے خلع لینے چاہیے۔ ایسی بے بنیاد رشتے کی زنجیر میں قید رہ کر بھی اذیت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس رشتے سے رہائی کی صورت طلاق ہے، جو عالیہ تمہیں طلاق جیسا کڑوا گھونٹ پھر بننا پڑے گا، کیونکہ بیٹا ہم مقدر کی لکھے کو کبھی ٹال نہیں سکتے۔ بے شک خالہ آپ جان ٹھیک کہتی ہیں، میرے نصیب میں ایسا لکھا تھا، آپ من چاہے شخص کو پا کر بھی اس کی محبت لا حاصل رہنا۔ عالیہ آنکھوں میں آنسو لیے صاف کرتے ہوئے بجھا دیتی ہے اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے دیتی ہے، دروازے کے پاس کھڑے مومن سے ٹکرا جاتی ہے۔ اور سوری عالیہ اتنا بول کر تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ماما بیٹا آؤ، ادھر بیٹھو۔ فاہرہ بیگم مومن کو جانب دے کر کہتی ہے، جی ماما۔ مومن آنکھیں بڑھ کر قریب بڑے صفحے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹا تم میری اور عالیہ کی گفتگو تو سن چکے ہو میرے خیال سے؟ جی ماما۔
मगर मैं आलिया को यूं बेबस देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। मोमन रोहन से अंदाज में कहते हैं, जानती हूँ बेटा, मैं तुमसे आलिया को बहुत चाहती हूँ, मगर तुम्हारी माँ भी भटक रही थी, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। जानते हो आलिया मुझे बहुत प्यारी है, मगर जब इसने खुला लेने का फैसला किया ना, तो मुझे ऐसा लगा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी, तो शायद अब मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैं आज सुबह सवेरे ही जवार के घर गई, ताकि इसको समझा सकूं कि आलिया को इसकी बीवी है और अपने घर लाए। मगर वो इधर जवार को बदले तेवर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आलिया के लिए मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत नफरत थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। बस इसलिए एक फैसला ने मुझे इसे नफरत करने में मजबूर किया। इसकी माफ़ी मांगने और माफ़ करने के बावजूद भी इसको मुकम्मल तौर पर माफ़ नहीं कर सकी थी। मगर बेटा आज मुझे अंदाज़ा हो गया वो मासूम अपने किए गए फैसले के बदले कितनी अजियत से गुजर रही है। और अब मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हो सके तो आली को रहलाई दिला कर तुम अपना लो, उसकी इतनी खुशियाँ दो कि अपना हर दुख दर्द भूल जाए। क्या वाकई आप सच कह रही हैं मम्मा? वह आपको क्या लगता है आलिया मान जाएगी? बिल्कुल ज़रूर मान जाएगी इंशाल्लाह। अगर ना मानी तो तुम्हारी माँ अब इसकी और कोई गलत फैसला करने नहीं देगी। बस तुम खुला के कागजात तैयार करो। जी अम्मी जान ठीक है, मोमन मुस्कुरा कर कहते हुए फाहरा बेगम को मुस्कुरा देती है। आकर कमरे में दाखिल होती है। जवार डॉक्टर लुबना को देखकर उठ खड़ा होते हैं। मोहब्बत व शफकत भरे अंदाज में डॉक्टर साहिबा से हाथ होते हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। डॉक्टर लुबना बेमुश्किल मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ कर खींचते बैठती है। जेवरात भी अपनी नशत से मुस्कुराते बैठ जाता है। डॉक्टर लुबना इधर उधर नजर डराती हिम्मत करते हुए मुश्किल और बात का आगाज करती है। मैं हो जल्दी में हूँ, इसलिए देवरार साहब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। दरअसल मुझे कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसा राज जिससे तुम वाकिफ हो, मगर इस राज और मेरी एक गलती ने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। आज मैं पछतावे की आग में दिन रात जलस रही हूँ और इस आग से रिहाई का रास्ता मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, मगर मैं नहीं समझा आपकी बात। आप जो कहना चाहती हैं कह रहे हैं, बेला जज साफ साफ कहें। जवाज शाज़गी से जो कहते हैं, दरअसल बात यह है कि आपकी पहली बीवी जिससे आपकी इलादगी हो चुकी है, जिसको मैं ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ, मगर सिर्फ इतना जानती हूँ बल्कि इस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम में बराबर की शरीक हूँ। डॉक्टर लुबना इतने कहने के बाद खड़ी होती है और छोटे छोटे कदम बढ़ती खिड़की के पास रुक जाती है और दोबारा बात का आगाज़ करती है। आपकी पहली बीवी जो कि आपकी वालदा को जहर देने का इल्ज़ाम लगाया गया था, वह सरासर झूठ था। बस आपकी माँ और बीवी की एक चाल थी इस मासूम को घर से बेदखल करने के लिए, आपके दिल में इसके लिए नफरत पैदा करने के लिए। मगर बदकिस्मती से न चाहते हुए भी मैं आपकी बीवी और वालदा के साथ दिया। चंद पैसों की हाथ जली रिपोर्ट से बनवाकर आपको इसे दिखाई और असल से आपको नावाक रखा। डॉक्टर लुबना इतना बोलकर खामोश हो जाती हैं और उसकी आंखों से बहते पछतावे के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर लुबना की बातें सुनते असलियत जानकर जवरार के अपने पाँव तने से ज़मीन निकलती महसूस होती। कुछ बोलने या कहने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बारिश की तेज़ बूंदों की तरह बह रहे थे। कुछ देर ही रोने के बाद अपने दिल का गुबार हल्के करने के बाद जेवरात बमुश्किल उठ कर खड़ा होते हैं और तेज़ कदमों से चलते हुए डॉक्टर साहब के बिल्कुल करीब पहुंचकर इस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया डॉक्टर साहब, क्यों किया? आपको ऐसे चाहिए थे ना, तो आप मुझसे वैसे ही मांग रही थी, दुगनी रकम बता कर। काश आप ऐसे न करती। मेरी माँ और सदफ को तमाना आलिया को नापसंद करती थी, मुझसे दूर करना चाहती थी, मगर आपकी क्या दुश्मनी थी इससे? बताएं मुझे। इस मासूम ने आपके भी गवारा था, मुझे इससे बदजन करने में मेरी माँ और बीवी की मदद की। आखिर क्यों किया ऐसा? डॉक्टर तो लोगों के जान बचाने के मुहावजे देते हैं, न कर लोगों की जानें बेचकर सवाब कमाते हैं। मगर आपने एक न क्या किया? नेक काम करने के बजाय किसी भटके हुए इंसान को सही रास्ते दिखाने की तलकीन करने के बजाय गलत काम में साथ देने की हामी भर ली। और मेरे पास क्या करने आई हैं? अपने किए की सजा कारनामे गा करने आई हैं। आप इस गुनाह की सजा को जरूर मिलेगी। बाकी माँ जी और सदफ को मैं खुद देख लूँगा। इतना बड़ा धोखा कैसे कर दे सकती हैं आप? कौन सी सजा मुझे दोगे? मैं सजा काट तो रही हूँ, बस ऐसी सजा जिसमें जिंदा जीना मौत से भी ज़्यादा तकलीफ है। पल पर जीती मरती हूँ। एक गलती के बदले मेरे रब ने मुझे मेरे इकलौती औलाद को छीन लिया, जिसके सहारे में जीती थी, और मुझे मेरे बेयार मदकार कर दिया। अब तुम जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, पर हर सजा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। क्या पता तुम्हारी माफ़ करने से मेरे दिल तकलीफ कम हो जाए, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। जब तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना। तारिया पैर पे खड़े हुए माफ़ी मांग रही थी। डॉक्टर लुबना रोते रोते जवरार के कदम में बैठ जाती है। जवार दो कदम पीछे हटते हुए गुस्से से दौड़ते हुए कहता है, डॉक्टर साहब आप बोल रही हैं, आपने सिर्फ गलती नहीं बल्कि गुनाह की है, जिसकी माफ़ी इतनी जल्दी नहीं आपको कभी नहीं मिल सकती। और याद रखना, दूसरे की खुशियों की खातिर कभी खुश नहीं रह सकती। आप भी जा सकती हैं बाहर का रास्ता। जवरार गुस्से से तन चुकी थी और उंगली के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं। डॉक्टर लुबना रोते ही वहाँ से उठते हुए और फिर कुछ कहते लगती है। जवरात इस पर गुस्से से डांटते हैं, बस अब मजीद कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर दफ्तर से निकाल दूंगा। डॉक्टर लुबना रोते ही मजबूरन बाहर को रुख करती हैं। डॉक्टर लुबना जाने के बाद जवरात गिरने की सूरत में
कुर्सी पर बैठ जाते हैं और डॉक्टर लुबना की बातें मुसलसल उसकी कानों में गूंज रही होती हैं। गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को पूरी जोर से बंद करते हुए कुर्सी से टेक लगाकर अपनी दोनों आंखों को मूंद लेते हैं। वो खुद को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश में जब कामयाब नहीं होता तेजी से उठकर बाहर का रुख करते हैं। दोपहर का वक्त था। गुस्से से पैर झटकते हुए दफ्तर से निकलकर सीधा घर का रुख करते, गाड़ी को फट स्पीड में चलाते हुए इशारे वगैरह की परवाह किए बगैर वो घंटे का सफर मिनटों में तय करते हुए घर में पहुंचते हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जाना बढ़ता है, जहाँ सदफ अलमारी में कपड़े इस्त्री किए हुए कपड़े लटकाने में मसरूफ थी। वो कमरे में दाखिल होते हैं, साथ कमरे का दरवाजा यूं जोर से बंद करते हैं कि ड्रम की आवाज़ पूरी घर में गूंज उठती है। वो परवाह किए बगैर तेज कदम चलते सदफ के करीब पहुंचता है। सदर जवार की आंखों में शदीद तरीन गुस्सा देखकर वजह जाने के लिए डरते डरते अभी कुछ बोलने लगती है, सिवा एक जोरदार थप्पड़ सदफ की बाईं गाल पर रसीद करता है। सदफ गुस्से से डांटते हुए पूछता है, क्यों किया तुमने ऐसे? तुम इतनी संगदिल हो सकती है वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सदफ का गाल पर हाथ अपनी समझ से कसरते हुए उसकी आंखों से आंसू की वादियां बह रही थी। जवार दोबारा इसको दोनों बाजू से पकड़ छोड़ते हुए कहते हैं, क्या समझती है तुम किसी की जिंदगी उजाड़ कर तुम सुकून से रह पाओगी? तुम क्यों भूल गई थी सदफ बेगम, ये दुनिया का मकाफत अमल है, जो वेज हम बोलते हैं वही काटते हैं। अब तुम काटोगी अपनी जिंदगी आखिरी सांस तक। तुमने आदि का सुख चैन इसकी टूटी फूटी खुशियाँ छीन ली ना। अब देखो मेरी अल्लाह ने तुमसे तुम्हारा सुख चैन छीन लिया। तुमने इसको मेरे दिल से निकाला, मेरी नज़रों से गिराने के लिए इस पर घटिया इल्ज़ाम लगाए ना। तो आज तो देखो तुम खुद भी मेरी नज़रों में ना सिर्फ गिरी हो बल्कि मुझे तो तुम्हारी शक्ल और वजूद से घिन आने लगी है। लेकिन समझ भी नहीं सकता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतने घुटौना करदार है। सदफ के पास कहने के लिए अपनी सफाई में कुछ नहीं था, अल्फाज मैसर नहीं थे, इसके मैंने गुमान में भी नहीं था। एक दिन इसको ये दिन भी देखना पड़ेगा। वो रोते ही अपने दोनों बाजुओं को मोमन की गिरफ्त में आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर जावियार, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत की खातिर की और मैं आपकी अम्मी भी इसमें बराबर की शरीक थी। और देखो अब तो मैं तुम्हें बहुत जल्द औलाद की खुशी से नवाजने वाली हूँ। प्लीज़ यार बस मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी मोहब्बत खुद गर्ज हो गई थी, वो किसी औरत का वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। वो रोते हुए मुसलसल बोले जा रही थी, तुम ये मत बोलो, वो कोई औरत नहीं मेरी बीवी थी और है भी है, मेरी बेटी की माँ। और एक बात तुम्हारे जहन में नशीन कर दूँ, सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरी बल्कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मगर अफसोस तुमने जिस नागन की बातों पर मैंने यकीन करके इस मासूम को घर से बेदखल किया। सेवराट सदफ गुस्से से डांटते हुए कहते हैं और हाथ से पकड़कर छुड़वा कर जाने ही लगते हैं। फिर मुड़कर दोबारा सदफ से हाथ होते उंगली का इशारा करते कहते हैं, और हाँ इसको तो मैंने सिर्फ अपने घर से बेदखल किया। तुम्हारी और माँ जी के कहने पर तुम्हें ना सिर्फ मैं अपने घर से बल्कि अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर फेंकूंगा। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और रोते हुए कहती है, कर सकता नहीं बल्कि ऐसे ही करूंगा बच्चा हो जाने के बाद। एकदम बोलकर तेजी से कमरे से निकल जाते हैं। सदफ वहीं रोते ही दरवाजे से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़ोर शोर से रोने लगती है। आलिया तेजी से नीचे और दिल का टीवी लॉन्च में दाखिल होती है, जहाँ मोमन और फाहरा बेगम इसी का इंतजार कर रहे थे। जी हाला, आपने बुलाया? वो धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ बेटा आओ ना, बैठो, खड़ी क्यों हो? और मोहम्मद बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सब हैरियत है ना हाला जान? उस समय बैठते हुए सवाली नजर से फाहरा की जानब देखते हुए थी। हाँ बेटा सब हैरियत है। पुरानी बेटे, मैंने मरियम आपा के इंतकाल के बाद तुम्हें बहुत नाज से पाला है, कभी मोमन और तुम्हें फ़र्क नहीं किया। आज भी मैं यही चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी फैसला खुद करो। देखो बेटा, ये बात मत सोचना कि तुम्हारी बेटी हमारे पर बोझ बन गई है, मगर आलिया बेटा ये ज़िंदगी बहुत कठिन है, यूँ नहीं करती। बेबुनियाद रिश्ते में बंधे रहने के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेटा मैं इस शख्स से मिलकर इसकी आंखों में पड़ चुकी हूँ। ये जान चुकी है इस शख्स में एहसास या शर्मिंदगी रत्ती बराबर भी नहीं है। बेटा बस सारी हदें पार कर चुका है। इसकी ज़िंदगी तुम्हारी और आयशा बेटी का होना या ना होना कोई अहमियत नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ो, अपनी माजी से निकल कर अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचो। और बेटा मैं तुम्हारे आज ये इख्तियार देती हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद सोच समझ कर करो, किसी किस्म की जोर ज़बरदस्ती नहीं हो। तुम्हारा हर फैसला में और मोहम्मद तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाला जाना पहले ही दिन अपने मनमानी करके बहुत पछता रही हूँ और मेरे पास कोई फैसला करने का कोई सख्त मौजूद नहीं। आप मेरे और मेरी बेटी के लिए जो सोचेंगे मुझे दिल व जान से कबूल होगा। अली अपनी आंखों में पहली नीमी को साफ करते हुए जवाब देती है, मगर बेटा फाहरा बेगम भी कुछ कहती है। अली तेजी से बोल पड़ती है, आप खुद कहती हैं ना आपको मेरे और मोमन में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर माँ की बेटी खुद पर इख्तियार देती है, उसकी ज़िंदगी का फैसला करे। हाला जान आप जो फैसला करेंगे मुझे कबूल है। मोमन जो खामोश बैठा माँ की गुफ्तगू सुन रहा था, धीमी लहजे में आलिया से मुखातिब होते हैं। आलिया में और अम्मी चाहते हैं तो उन जेवरात से खुला ले ले, क्योंकि शौहर बीवी का मुहाफ़िज़ होते हैं। वो अपनी बीवी को दुनिया की कड़ी धूप से मुहाफ़िज़ रखने के लिए इसकी ज़िद का हिफाजत करते हैं और ज़िंदगी की हर मुश्किल वक्त में अपनी बीवी के साथ खड़ा होते हैं। यूँ अपनी बीवी को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए बेयार मददगार नहीं छोड़ देता। मोमन की बात सुनकर आलिया आंसू बहाते हुए फाहरा बेगम जानो देखती है। हाँ बेटा मोमन ठीक कह रहा है, मेरा और मोमन का यही फैसला है। बाकी बेटा
तुम हमसे बेहतर जानती हो, फैसला कर सकती हो, हमें कोई इतराज़ नहीं। हम खाला जान, आप दोनों ने जो मेरे लिए सोचा है बेहतर ही होगा, मगर खाला जान मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सदफ मुलाजमा को आवाज़ देकर बैग उठाने का बोलती है। खुद रोती धोती सीढ़ियों की जाने बढ़ रही थी, कमजोरी और परेशानी के बायस इसकी तबीयत काफ़ी नारसार थी। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर इसको जाना था, और अगर जा जाएगा तो अपनी बच्चे को खो देती। इसकी खोख में पड़ रहा था और इससे ही जीने की अमंग थी, वरना जेवरात तो इसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए साफ कह चुका था। वो रोती हुई सीढ़ियों उतर रही थी कि अचानक इसको चक्कर आते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाते हैं और तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाती, गिर जाती है। इसकी चीखों की पुकार सारे घर में हो गई थी और पेट पर हाथ रखे दर्द कड़ा रही थी। मुलाजमा चीखों की आवाज़ सुनकर दौड़ते ही सदफ के करीब पहुंचती है। तब तक सदफ आंखें मूंद चुकी थी और सारी दुनिया से बेखबर बेहोश जमीन पर पड़ी थी। जब मुलाजमा की चीखों की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई सदफ को यूं बेहोश पड़े देखकर रोंदे खड़े हो जाते हैं। कपकपाती आवाज़ से बानो पुकारती है, बानो जवाहर साहब को कॉल करो, सदफ बीवी गिर गई हैं। खुद सदफ का सर गोद में रखते हुए तब दादी कहती है, सदफ बीवी प्लीज़ आंखें खोलें, प्लीज़ सदफ बीवी। तो रात के अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। अचानक इसके मोबाइल पर फ़ोन की घंटी बजती है। बेल की आवाज़ से चुन करता है और आंखों से आंसू साफ करते हुए कॉल रिसीव करता है। साहब जी आपके इधर हैं जी, प्लीज़ जल्दी जहाँ भी हैं जल्दी से घर आएँ। सदफ बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो जी सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई हैं। बांदर और हंसी अंदाज में सांस ले बगैर बोलती है, क्या मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है। तेवरा तेज़ी से बोलकर कॉल काट देते हुए वक्त ज़ाय किए बगैर जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए घर की जाने जाते हैं। आलिया टीवी लॉन्च में गुमसुम बैठी थी। मोमन जो अभी टीवी लॉन्च में दाखिल हुआ था, आलिया को जो गुमसुम बैठा देखकर फिक्रमंदाना अंदाज में पूछता है, क्या बात आलिया, सब ठीक है। आलिया सोचे कि वादी में इस कदर गुम थी कि मोमन की कोई बात का जवाब नहीं देती। आलिया की आंखों सामने चुटकी बजाते हैं, तो क्या है, कहाँ गुम हो। मोमन की चुटकी बजाने पर आलिया चुप उठती है, तेजी से बोलती है कि कुछ नहीं मोमन, बस दिल बहुत उदास है। दिल क्यों उदास है भाई, कोई मसला है तो मुझसे फिर आज शेयर करो। नहीं मोमन, कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही लगते कुछ होने वाले हो, जो भी होने वाले वो खुद गलत होने वाले हैं। अल्लाह पाक खैर करे, पगड़ी कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक से अच्छी की उम्मीद रखो और दुआ करो। मोमन बहुत दुआएं करती हूँ, मगर कभी कभी मेरी ऐसे लगता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। और हंसी होकर मासूम बच्चे की तरह मोमन को बताती है, अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करते हैं, वो तो अपने बंदे की शरक से भी अपने नज़दीक हैं। यार जैसे ही घर में पहुंचते सदर की हालत देख के इसके रोंगटे खड़ जाते हैं। आवाज़ देकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के बोलते खुद तेजी से सदर को ठक्कर गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। सदर की हालत बहुत तशवीशनाक थी, इसे चेहरे का रंग जर पड़ चुका था, इसका पूरा जिस्म यह ठंडा हो चुका था। जवाब वक्त जाए के बगैर ड्राइवर के हमरा जैसे ही सरदार पहुंचते हैं, सदफ की हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इसके फ़ौरन इमरजेंसी रूम मुंतकिल किए जाते हैं। और जबरार परेशान हालत में माहिर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इस मुश्किल घड़ी में कोई अपना इसके पास मौजूद नहीं था। एक गलती ने एक हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया था। किसने सोच कहा था, वास में कमाकर सारे फसाद की जड़ औरत होती है, क्योंकि एक औरत अपने ही किरदार के जरिए अपने घर में बसने वाले लोगों को दिल जीत कर एक घर को जन्नत का शगवारा बनाती है, और इसके बरक्स एक औरत ही हसद और अना की खातर एक हंसते बसते घर को जन्म बना देती है। ऐसे की नमाज अदा करने के बाद आली खड़ी करीब खड़ी बाहर बरसती बारिश की बूंदों को गौर से दिख रही थी। अचानक मुलाजमा बौखलाई हुई आली को आवाज देती थी, आली क्यों आती है, आली बीबी, हाँ शानो बोलो क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। आली मकर फिक्रमंदाना अंदाज में शानो से पूछती है, जिसके चेहरे पर परेशानी की तासरत वाजी थे। वो जी बड़े बेगम साहिब की तबीयत बहुत खराब है, मोहम्मद साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। मुलाजमा तेजी से बगैर सांस लिए कहती है, क्या क्या हुआ हालत को जान को, कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। आलिया और हंसी होकर कहती है। वो तेजी से कमरे से निकलकर सीधे फलांग दी फाहिर बेगम कमरे का रुख करती है। जदन मोमन माँ के पैरों के तलियां मसलने के मलने पर मसरूफ था। फाहिरा बेगम बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। मोमन हारा जानो क्या हुआ, आलिया आंसू बहाते हुई थी। अम्मी जान का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मुझे लगता है इन्हें इस वक्त दवा के नहीं खाई थी। आलिया रोते ही फाहिरा बेगम करीब बेड पर बैठ जाती है। हाला जान प्लीज़ आंखें खोलें, प्लीज़। मोमन देखे ना, हाला आंखें नहीं खोल रही। बच्चों की तरफ रोते ही मोमन की तरफ देखते हुए कहती, हालिया हौसला करो, अम्मी पहले भी ऐसी ही तबीयत बिगड़ जाती है जब भी बेदपरहेजी करते हैं। मेरे डॉक्टर कॉल की हवा आने ही वाले हैं। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हो चुके वेटिंग एरिया में बैठा इंतजार करता। सख्त सर्दी बारिश के होने के बाद इसकी तबीयत भी काफ़ी नासार थी। इतने में डॉक्टर अपनी टीम के आराम इमरजेंसी से बाहर निकलते हैं। जल्दी से अपनी नश से उठकर डॉक्टर जाना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब कैसी हो, मेरे बच्चे कैसे हो, तेजी से हुई थे। जी आपकी बीवी की हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब ज़ियावरान का कंधा थपथाते हुए जवाब देते हैं, और मेरा बच्चा आई एम सॉरी ज़ियावरान साहब, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। दरअसल आपकी बीवी की हालत काफ़ी नासाज थी, दोनों का बचना नामुमकिन था। डॉक्टर साहब इतना बोलकर ज़बान कदर थपथपाते हुए बाहर के कमरे की जाना बढ़ जाती है। ज़बान यहाँ पर सुनकर वहीं घुटनों के पास ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगता है।
अचानक इसके कान में आवाज़ गूंजती है, तुम इस बच्चे के लिए रो रहे हो जो दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह पाक को प्यारा हो गया, मगर तुम्हें अपनी बेटी के ज़रा ख्याल है या एहसास नहीं, जो लोगों के घरों में ज़लील व ख्वार हो रही है, एक बाप के होते हुए बाप की शफकत और मोहब्बत से महरूम है। मिस्टर रवियान, बस इतना याद रखो, खुदा को भी इस शख्स को बात करता है जो इसकी हर खुशी से नवाजते हैं, जो इसके बिना कवानीन की पाबंदी करते हैं, खुदा की रहमतों की नाशुक्री नहीं करता बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मगर अफसोस ने बेटी को यानी खुदा की रहमत को बोझ समझकर नकदरी की ओर देखो, रब ने तुमसे हर रिश्ते को छीन लिया। आज तुम बिल्कुल तन्हा हो और दर्द और गम बांटने के लिए कोई तुम्हारे पास मुयस्सर नहीं है। मेरे रब का इंसाफ है। ज़ेवरार अभी इन्हीं सोचों में गुम जमीन पे बैठा मुसलसल फूट फूट कर रो रहा था कि एक नर्स तेजी से चलती हुई ज़ेवरार के पास आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर ज़ेवरार, नर्स की आवाज़ पर ज़ेवरार चौंक उठता, नीम आंखों से नर्स की जानब देखते हुए। अगर कुछ बोलने ही लगता है कि नर्स तेजी से बोलती है, हमने आपकी मिसेज को रूम में शिफ्ट कर दी है, अब ये इनकी हालत काफ़ी बेहतर है, आप जाकर इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, ज़ेवरार धीमी आवाज़ में कहते हैं। कदमों की आहट सुनकर बमुश्किल आंखें खोलकर ज़ेवरार की जानब देखती हैं। ज़ेवरार करीबी बड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब ज़ेवरार कुछ नहीं बोलता, सतह पर मुश्किल रोती ही ज़ेवरार को आवाज़ देती है, ज़ेवरार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ ज़ेवरार मुझसे बात करें, आपकी खामोशी मेरे लिए इस आपकी आंखों में शदीद नफरत मुझे जीते जी मार रही है। ज़ेवरार आपकी बेरुखी देखकर अंदर ही अंदर मेरा दिल किरची किरची होकर बिखर रहा है, मेरे अंदरूनी वजूद को छलनी छलनी कर दिया। बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी कटन हो रही है, तुम्हारे वजूद से मुझे घिन आ रही है। तुम्हारे पास अगर मौजूद हूँ ना तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि सब भूल चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं भूला, बस मजबूरी के तहत तुम्हारे पास मौजूद हूँ। ज़ेवरार सतह पर गुस्से से चलाते हुए कहता है और सतह के करीब जाकर आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम सिर्फ मेरी खुशियों की कातिल नहीं बल्कि मेरे बच्चे की कातिल भी हो, जिसको मुझसे छीनने और दूर करने के लिए तुम घर से भाग रही थी ना। अरे तुमने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया, जिसकी वजह से शायद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल नहीं करता, तुम्हें रहने और सर छुपाने के लिए अपने घर में जगह दे देता, मगर तुमने अपने आखिरी सहारा भी गंवा दिया। अब मेरी ज़िंदगी और मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे भाई का कॉल कर दी है, तुम्हें लेने के लिए बस पहुंचने वाला होगा, और हाँ बहुत जल्द तलाक का साथ तुम्हें पहुंचा दूंगा। नहीं ज़ेवरार प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे अपनी ज़िंदगी से मत लगा लो। ज़ेवरार मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और ज़ेवरार का बाजू पकड़ते हुए रोते हुए कहती है। ज़ेवरार खा जाने वाली नजर सदफ की तरफ देखते हुए तेजी से अपना बाजू छुड़ाकर कमरे से निकल जाते हैं। सदफ चीखती चिल्लाती रह जाती है, प्लीज ज़ेवरार ऐसा मत करो, मेरे साथ में मर जाऊंगी। नाश्ते से फारग होकर फाहरा बेगम और आयशा आलिया भाई लॉन में बैठी धूप सीख रही थी। आयशा स्कूल जा चुकी थी। फाहरा बेगम धीमी आवाज में आलिया से हाथ होती है, आलिया बेटा फिर क्या सोचा तुमने, किस बारे में हारा जान। आलिया सारी नजर से फाहरा की जानब देखती हुई कहती है, बेटा अपनी जिंदगी के बारे में, ज़ेवरार से खुला लेने के बारे में। कोई देर खामोशी के बाद आलिया हिचकिचाती कहती, हाला जान ये सच है, मैं ज़ेवरार से आज भी बेहिसाब मोहब्बत करती हूँ, उसकी खुशी में खुश हूँ, क्योंकि हाला जान जिनसे मोहब्बत की जाती है इनसे मुकाबला नहीं किया जाता। अगर मेरे साथ नहीं जाते तो मैं खुला लेने के लिए तैयार हूँ। इतने में एक गाड़ी घर के अंदर दाखिल होती है, जिसमें डॉक्टर लुबना निकलकर आमना बेगम को सहारा देकर गाड़ी से निकलकर व्हील चेयर पर बिठाती है और फिर दोनों का रुख करती है जिधर फाहरा बेगम और आली बेगम रहती हैं। आलिया आमना बेगम को देखकर चिमुटती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? फाहरा बेगम तह लहजे में पूछती हैं। मैं बेटी आलिया से बात करने आई हूँ। आमना बेगम रोहानसी होकर कहती हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जैसा चाहती थी वैसा हो गया, अब क्या बात करनी है आपको, और आप कुछ कहना बच्चा है। आलिया बेटा प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुनो, देखो तुम एक बेटी की माँ हो और जानती हो औलाद को किसी दुख देखकर माँ के दिल पे क्या गुजरती है। आलिया मेरा बेटा तुम्हें छोड़कर पछता रहा है। बेटा गुजरा वक्त तो वापस नहीं आ सकता, मगर अपने हाल और मुस्तकबिल पर बदल सकते हैं। हम दल लम्हात को भूल कर अपनी ज़िंदगी के नए सिरे से शुरुआत कर सकते। कितना आसान है ना आपके लिए कहना कि वक्त भूल कर ज़िंदगी के दौड़ में आगे बढ़ना, मगर मेरे लिए ऐसा नामुमकिन है। ज़ेवरार मुझे कॉलेज लाइफ से जानता था, मुझसे मोहब्बत के बेशुमार दावे करता था, मगर मुझसे नाकर्दा गुनाह के इल्ज़ाम के बदले इसे मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, मेरे ईमान का जनाजा निकाल दिया। मुझे जावी पर मैं तो सबसे कहती थी कि सारी दुनिया मुझे छोड़ सकती है, मेरे खिलाफ हो सकती है, मगर मेरा ज़ेवरार नहीं। लेकिन मैं गलती, मेरा वहम था, मैं ज़ेवरार के ने साबित कर दिया। देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ हमें हाथ जोड़ दी, मुझसे एक मौका दो, मेरे ज़ेवरार को प्लीज़, बेकसूर है और रिश्तों की दीवार के दरमियान जकड़ कर रह गया था। बेटा असल मुजरिम तो मैं हूँ, जिसने तुम्हारी ज़ेवरार को दूर करने में हर मुमकिन कोशिश की। तुम्हारी अच्छाई और साफ गोई का एहसास मुझे तब हुआ जब सदफ ने मुझे घर से बेदखल करके ओल्ड हाउस में भिजवा दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हीर जैसी बहू को बनवाकर सिक्का का इंतखाब किया। बेटा प्लीज़ सदफ एक मौका दो मेरे बच्चे को, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं ज़ेवरार से खुला लेने का फैसला कर चुकी हूँ। रही बात माफ़ करने की, तो आपने सुना होगा जख्म बढ़ जाते मगर खाओ नहीं बढ़ते। जिस दुनिया में मेरे जख्म बढ़ेंगे ना, मेरा वादा है आपसे मैं ज़ेवरार को माफ़ कर दूंगी, मगर मेरी इतनी सख्त नहीं माफ़ करने की। और मेरी माँ
मेरी माँ जैसी हैं और माँ मैं बाटियों से कभी माफ़ी नहीं मांगती। आपने जो किया आपको बेहतर लगा, मुझे ऐसे कोई गिला नहीं है। मगर एक बात का दुख है, मुझे जिनकी खातिर बेइज्जत और जलील किया था, काश वो आपकी इज्जत की लाज रखते और ये उम्र की इस हिस्से में आपको बेघर न करते। आली इतना बोरकनीम आंखों साफ करती हुई उठकर जाने लगी थी। डॉक्टर लुबना रोते हुए आवाज़ देती आली को रोका। आलिया रुक जाती और बगैर कुछ बोले सवाली नजर से डॉक्टर लुबना की तरफ देखती हैं। डॉक्टर लबना अपनी नशिश से उठकर आली करीब आती हैं और बगैर कुछ बोले आली के सामने हाथ जोड़ते फुट फुट कर रोने लगती हैं। प्लीज़ यूँ हाथ जोड़कर मैं शर्मिंदा मत करें प्लीज़। आलिया लबना डॉक्टर के हाथों को पकड़ कर बोलती है, बेटा मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, जो मर्जी सजा दो, मेरे अल्लाह मुझे सजा दे चुका है, मगर अभी तुम्हारे भी सजा देना बाकी है। डॉक्टर लबना रोते हुए शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वाक़ियात आलिया को आगाह करती है। रोते हुए वही ज़मीन पर बैठ जाती है। डॉक्टर लबना को यूँ अजीयत और तकलीफ़ें देखकर आलिया के दिल में उनके लिए एक नरम गोशा पैदा होते हैं और दोनों बाजों से पकड़कर डॉक्टर लुबना को खड़ा करती हैं। अपनी आंखों से बहते आंसुओं की नदियों को साफ करते हुए मशहूर कहती हैं, मैं आपको क्या सज़ा दूँ, आपको तो आपके किए की सज़ा मिल चुकी है। वो सज़ा मेरे अल्लाह ने आपको दी है, शायद मैं कभी देने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी, मगर मेरे रब की इस फैसले में ज़रूर हिकमत छिपी हुई है। और मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ एक माँ के लिए औलाद को खो देने का दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। इसलिए मैं आपको माफ़ किया और जहाँ भी हो अगले जहाँ में है। आलिया इतना बोल कर रोते हुए डॉक्टर लुबना को गले लगा देती हैं और दोनों खूब जी भर कर रोती हैं और अपने दिल का बोझ हल्का करती हैं। आलिया फिर आमना बेगम के पास आती है और आमना बेगम कदम बैठ कर धीमी आवाज़ में कहती है, अम्मी जान मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने आपकी हर गलती जुल्म ज़्यादती को माफ़ किया, मगर जो आप चाहती हो मेरे बस में नहीं है। आली इतना बोलकर रोती हुई उठकर वहाँ से जाने लगा करती है। आली के जाने के बाद फाहरा बेगम जो कब से बदबनी बैठी बातें सुन रही थी, आपने बेगम से हाथ होती है, बहन आपका अपना घर है, आप जब मर्जी आए, मगर प्लीज़ आज जिसके लिए आई हैं दोबारा मत आइएगा। मेरे बेटी फिर से पीते वक्त से याद कर सदमे में चली जाती हूँ और मैं इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने बेगम बगैर कुछ किए हैं मुँह नीचे कर रोने लगती है। डॉक्टर लुबना से कहती है, चलो बेटा आप प्लीज़ बैठें, चाय पी कर जाइएगा, मुलाजमा लेकर आती होगी। शुक्रिया बहन, इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं। आमना बेगम आँख साफ करती है, जवाब देती हैं, नहीं बहन तकलीफ़ की नहीं, हमारा फ़र्ज है कराए मेहमान की खिदमत करना है। इतने में मुलाजमा चाय लेकर आ जाती है। जावियार आयशा को उठाए शॉपिंग मॉल से बहुत सी शॉपिंग करके बाहर निकलता है। बाहर का शाम का अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका था। वो बेटी के साथ इतना खुश था कि इसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। बार बार बेटी के माथे पर बोझ दिखता, मुस्कुराते हुए गाड़ी की जाने बढ़ रहा था। आशा बोली इसी सूरत बनाए तो बाप से वहाँ तभी, बाबा प्लीज़ रात हो चुकी है, आप मुझे छोड़ दें। मामा परेशान होगी, मैं इनसे पूछे बगैर आपके साथ आ गई हूँ, इनको पता भी नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ। ओके बाबा की जान। और फिर दोनों गाड़ी में बैठ के घर की तरफ रवाना होते हैं। बाबा अब मामा से नहीं मिलेंगे। आशा गाड़ी से निकलते हुए बाप से पूछती है, नहीं बेटा आपकी मामा नाराज़ है ना मेरे से गुस्सा करेंगी, आ जाओ। आशा मुँह छोड़ते हुए रुक जाती है। क्या हुआ, रुकी होंगी बेटा? नहीं मुझे नहीं पता बाबा, आप मेरे साथ अंदर जाएं। आशा बस जिद करते हुए मासूमाना अंदाज में कहती है। सवार कोई सोते ही ठंड आ बढ़ते हुए कहता है, चलो बेटा, और फिर बेटी को उठाकर मुस्कुराते हुए घर की जाना बढ़ जाता है। आशा घर में दाखिल होती है और जोर जोर से आलिया को वादे देती है, मम्मा देखे कौन आया है। आशा की आवाज़ पर जब आली कानों में गूंजती है, आली तेजी से दौड़ती हुई टीवी लॉन्च से बाहर निकलती है। बाहर का मंजर देख देख कर दंग रह जाती है। आशा और फाहरा बेगम, मोमन और फाहरा बेगम आलिया के पीछे टीवी लॉन्च से बाहर निकलते हैं। बाहर आयशा को लवरार के साथ देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। आयशा दौड़ कमा के पास आती है। आली रोते हुए तेजी से आयशा को उठाकर गले लगाती है, पागलों की तरह चुनती है, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? मम्मा बहुत परेशान हो रही थी, मम्मा को छोड़कर कभी मत जाना, है ना? मम्मा तुमसे जुदा बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे बगैर मर जाएंगी बेटा। आली रोती हुई आयशा को प्यार करते हुए बोले जा रही थी, आई एम सॉरी मम्मा, मैंने को हर्ट किया, बाबा के साथ चली गई थी, आइंदा ख्याल रखूंगी। आयशा प्यार से माँ की आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते हुए जवाब देती है। मोमन तेजी से आगे बढ़कर जवार करीब आता है। जवार जो पत्थर का बुत बने खड़ा होता है, क्यों आयशा को साथ लगे कहते, तुम्हारा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है, तुम सारे को खो चुके हो। मोमन जवार से गुस्से से डांटता है, उसे गुरबान से पकड़कर छोड़ते हुए पूछता है, मैं कोई गैर नहीं हूँ, आशा का बाप और मेरी बेटी है, मेरा खून है। जवार भी गुस्सीली लहजे में अपने गिरबान छुड़वाते हुए जवाब देते हैं। आशा बाबा मोमन को गुस्से में देखकर डर जाते हैं। मोमन मामू, बाबा मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेके गए थे, मैं खुद गई थी बाबा के साथ। आशा रोते ही कहती है। मोमन आलिया के जाने में नज़र दौड़ाकर वहाँ से जाने की करता है। फाहरा बेगम में कुछ बोले बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। जवार मायूस कदमों से चलता हुआ आलिया की रिवाता है और फुट फुट कर रोते हुए हाथ जोड़कर कहते, प्लीज़ आलिया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं क्या करता। आलिया में
माँ जी उस हदफ के बहकावे में आ गए तो मैं जिस बात की इल्म ने हरगिज़ नहीं था, मेरी माँ अपने अना की खातिर इस कदर गिर सकती हैं। मेरा खुदा गवाह है अली, मैं आज भी तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करता हूँ। ज़बरार रोते हुए माफ़ी मांगता अली के कदमों में उठ जाते हैं। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते तो यूँ मेरे साथ ना करते, मुझे घर से बेघर न करते, मेरा नहीं तो इस मासूम का ख्याल कर लेते। आलिया पास खड़ी आशा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ज़वार इस वक्त याद करें ज़वार, इस वक्त मैं तुम्हें कितनी कस्में वादे दिए थे, इस मासूम की कस्में दी थी, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप किस मुँह से मुझसे माफ़िया मांग रहे हैं और इसकी छोटी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। आलिया आंखों से आंसू साफ करते हुए पूछती है, आलिया मैं जानता हूँ मुझसे गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हो, ये भी जानता हूँ। इस गुनाह के बाद तुम्हारा मुझ पर यकीन करना मुश्किल है, मगर आलिया मैं सच में अपने गाँव गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। हर वो खुशी तुम्हें देना चाहता हूँ जिसकी तुम मुस्तहिक हो। अब कोई फ़ायदा नहीं ज़वारान, इन बातों का मैं आपसे खुला लेने का फैसला कर चुकी हूँ। क्या आलिया तुमने ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना? और आली देखो इंसान कितना गुनाह करता है, मगर रब भी तो फिर माफ़ कर देते हैं। मेरे बंदे तो सच्चे दिल से तौबा कर, मुझसे सजदे में गड़गड़ा कर माफ़ी मांगो, तुझे माफ़ कर दूंगा। मेरा रब है और मैं इसकी बनाई हुई एक आदमी कमज़ोर इसकी बंदी हूँ। मैं इतना ज़र्फ नहीं रखती कि तुम्हारे हर गुनाह को बुलाकर माफ़ कर दूँ, तुम्हें ये नामुमकिन है मेरे लिए। प्लीज़ आली, एक बार ज़वरार होते हुए उठकर आली के मुकाबले खड़े होते कहते हैं, चलो बेटे कमरे में। आलिया आयशा की उंगली पकड़कर जाने ही लगती है। आयशा मुड़कर बाप की तरफ देखती ऊंची आवाज में रोने लगती है। आयशा बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? आलिया बेताब होकर घुटनों के बल बैठ के बेटी हुई सोचती है, मामा प्लीज मेरे बाबा को माफ कर दें, प्लीज मामा। आशा रोते ही माँ से मासूमाना अंदाज में इख्तियार करती है, बेटा ये वही बाबा हैं जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। आलिया जवान की तरफ गुस्सीली नजर से तकते हुए जा देती, लेकिन मम्मा बाबा सॉरी भी तो कर रहे हैं और हमारी टीचर कहती हैं जो आपको सॉरी बोले इसे माफ कर देते हैं। आलिया आशा की बात सुनकर बगैर कोई जवाब दिए तेजी से अपने कमरे का रुख करती है। जवान मायूस कदमों से चलता बेटी से करीब आते हैं और आशा की आंखों से नीमी साफ करते हुए माथे चूम के कहते हैं, बेटा अब रोना नहीं, बहुत जल्द अपनी बेटी को और मामा को लेने आऊँगा, ठीक है? ओके बाबा, मैं आपका इंतजार करूँगी। ओके बाबा, बाय बाय। अब आपकी मामा के पास जाओ और मामा को तंग बिल्कुल भी नहीं करना। और जवार अपनी आंखों से नीमी साफ करते हुए मुड़कर बाहर का रुख करते हैं। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती गुजरी, नींद इसकी आंखों से कौसे गायब हो चुकी थी। वो सिसकी लेती हुई आशा की आवाज़ें मुसलसल सी कानों में गूंज रही थी, मामा आप बाबा को माफ़ कर दें प्लीज़। वो हर तंग आकर उठ बैठी थी। लाइट ऑन करती हुए सामने दीवार पर लगे टाइम में पीस में नजर डाली, जिसमें सुबह के 3:30 बज रहे थे। जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाती है, वजू वगैरह करने के बाद ताजद का नफल अदा करती है, गड़गड़ाते हुए सज्जे से अपने पाक से मदद मांगती है। ए मेरे परवरदिगार, इस कायनात के हालक मालक, तू शेरक से ज़्यादा करीब है। मेरे मालक में तेरी बंदी हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे इन आजमाइशों से रिहाई अता कर। और मेरे मालिक हर तौर पर फैसला करने में मेरी मदद कर। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ। मेरे मालिक में इन आजमाइशों से रिहाई अता कर, मुझे फैसला करने की हिम्मत और ताकत अता कर। मेरे लिए दीन और दुनिया और आखिरत में मेरे लिए बेहतर साबित हो। आशा गड़गड़ा के अल्लाह के हुजूर जोली फैलाए मदद मांगने में मसरूफ थी। उसकी आंखें मुसलसल सावन की तेज बारिश की तरह बरस रही थी और वह छोटे बच्चों की तरह खिंचकें लेती दुख दर्द अपने रब के सामने रो रो के बयान करने में मसरूफ थी। फिर थक हार कर वहीं जान मास पे लेट जाती हो, न जाने कब यूं ही सिसकते रोते इसकी आंख लग जाती है। सुबह 10 बजे आलिया अभी तक जानमाज पर पूरे दिन से बेखबर सो रही थी। अचानक दरवाजा दस्तक होती है, आंखें मसलते बच्चों की तरह मुहिम में बढ़ाती उठ के बैठी है। कौन है? अंदर आ जाओ। जमाई रोकते ही बात कर मुकम्मल करती है, मैडम मैं हूँ अरीबा। वो दरवाजा खोले अंदर आ गई थी। वो सॉरी मुझे लाकर खोलना याद नहीं था। वो तेजी से उठकर दरवाजा खोलती है। अरीबा आलिया का होलिया देखकर दंग रह जाती है। सूजी ही मोटी सी आंखें, उजरी रंगत, बिखरे बाल, ये क्या हाल बना रखे हैं आली तुमने? अपना अरीबा तेजी से हंसी होकर पूछती है, क्या है यह हाल है मेरा? पगली अभी सोकर उठी हूँ और तुम्हारी तरह नई नवली दुल्हन थोड़ी हूँ जो सजन करे रहो। आली में मुश्किल मुस्कुराते हुए जा देती है। अरीबा बगैर कुछ बोले तेजी से आली से लग जाती हो, धीमी आवाज में कहती है, जिस आली को मैं जानती हूँ ऐसी हरगिज नहीं थी। पहले जिस आली को तुम जानती थी इसका दिल भी तुम नहीं टूटा था। अरीबा का गले लगा मिलते हुए धीमी आवाज में कान में सरगोशी करती है, फिर दोनों मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो जाती हैं। और जनाब अरहम भाई कैसे हैं और हनीमून कैसे रहा? आलिया बालों का रफ से जुड़िया बनाते हुए तजस्सुस से पूछती है। अरहम ठीक और हनीमून भी बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया, मगर अरीबा कुछ रहते रहते रुक जाती है। क्या मेरी माँ? आलिया अरीबा के पास बैठते हुए सर पर प्यार से जिद लगाते पूछती है, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी आली, मेरा दिल भी बहुत उदास था। अरे बगली मेरी वजह से परेशान क्यों हूँ? देखो तो बिल्कुल ठीक ठाक एकदम मस्त तुम्हारे सामने बैठी हूँ। आली अपने आंसुओं को जब्त करते हुए मुश्किल मुस्कुराते हुए जा लेती है। जान अली मैं बच्ची नहीं हूँ, सब जानते हैं तुम इस वक्त किस मरहले से गुजर रही, लेकिन मेरी जान अब तुम्हें कोई फैसला करना होगा। हर कब तक ऐसे ही खुद को अजियत दोगी? अरीबा मैं क्या करूँ? मुझे वक्त और हालात ने एक ऐसे कड़ाई पे खड़ा कर दिया है
जिससे से निकलने का रास्ता ही नहीं। कल जबरान आया था आयशा के साथ, और फिर आलिया सारी बात अरीबा को बताती है। अब तुम ही बताओ अरीबा, मैं क्या करूं? क्या जबरान भाई आए थे और माफी मांग रहे थे? अरीबा को जैसे अपने कानों में यकीन नहीं हुआ, बात को दोहराते हुए पूछी। आलिया हंसी और हाँ में सर हिलाती है। पगड़ी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वे तो बहुत अच्छा हुआ जबरान भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया, और मेरे ख्याल है तुम्हें जबरान भाई को माफ कर देना। जिंदगी की दौर में जबरान भाई के हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या यह तुम कह रही हो अरीबा कि मैं इस शख्स को माफ कर दूं जिसने मेरे मान का खून किया, बीच रास्ते में मेरा हाथ और मेरा साथ छोड़ा जब मुझे इसकी ज़रूरत थी? तो अली, तुम अपनी जगह खुद ठीक हो मेरी जान, मगर ज़रा सोचो, इसकी जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। वो मजबूर था अपनी माँ के हाथों, इसकी झूठी रिपोर्ट के हाथों। इस बेचारे तो वह गुमान में नहीं था कि इसकी माँ इसको इतना बड़ा धोखा दे सकती है। और इधर बात आयशा की भी है, वो अपने बाप के साथ रहना चाहती है, और अगर कल को आयशा अपनी खुशी से अपने बाप के पास चलेगी तो तुम क्या करोगी? उल्टा जेवरार भाई के साथ अपनी बेटी को भी खो दोगी। और अली, कल किसी ने देखा है, ना जाने कैसा हो, इसलिए मेरी जान जबरान भाई को माफ़ कर दो। पता है अली, एक शख्स की बीवी बहुत गुस्ताख और बुरी थी, मगर इस शख्स ने इसे तलाक नहीं दी, बल्कि इसके साथ अल्लाह की एक बंदी समझकर माफ़ करता रहा, इसके हर गुनाह माफ़ करता रहा। फिर अल्लाह इस शख्स का इंतकाल हो गया और वह शख्स किसी ख्वाब में आया। उससे पूछा, बताओ कैसा बना? उसने कहा, बस अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमा दी और मेरी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तूने इसको मेरी बंदी समझकर माफ़ किया और इसकी लाख खताओं को बावजूद माफ़ कर दिया, तो मुझे अपना बंदा समझकर माफ़ करता हूँ। अली, माफ़ करना हमें मुश्किल ज़रूर लगता है, मगर इसकी दर हकीकत बहुत वसी है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाली बगैर कुछ बोले नहीं आंखों से अरबी की जानब देखती है। इतने में दरवाज़ा दस्तक होती है। अली जल्दी से आंखें साफ करते कहती है, कौन है? अंदर आ जाओ। मिलाजा चाय की ट्रे ले कमरे में दाखिल होती है। अरीबा और आली को चाय पेश करती है और वो दोनों खामोश हो जाती हैं। अचानक दरवाजे में दस्तक होती है और ठक ठक की आवाज़ में चुंक उठती है। कौन है? प्लीज़ अंदर आ जाएं। आलिया तेजी से बोलती है। मोमन कमरे में दाखिल होते हैं। मोमन को तो आलिया हैरान हो जाती। मोमन आप? मेरा मतलब कौन काम था? हाँ अली, वो वकील साहब अभी का कॉल आई थी, वो चाहते हैं जल्द अज जल्द हमें होले के पेपर्स दस्तखत करवाने होंगे ताकि अपनी कानूनी कार्रवाई कर सके। मगर मोमन, वो सब तो ठीक है, लेकिन आली मुंह पर आए बालों को कान के पीछे करती कहती, लेकिन क्या आली? मोमन के दिल का खदशा जाहिर होता है कि आली अपने फैसले से मुकरी ना जाए। वो खदशा मोमन का दुरुस्त था। मोमन, वो असल बात यह है कि मैं होला नहीं लेना चाहती। मेरी बेटी आशा इसमें खुशी है, वो अपने बाप के पास वापस जाना चाहती है। कजवार के पास मैंने आशा के चेहरे पर जो खुशी देखी है वो पिछले 9 माह से नहीं देख पाई, इसलिए मैं आपको वकील को मना कर दें। आलिया हिचकिचाते हुए चबा चबा अपनी बात मुकम्मल करती हैं। मगर आली, तुम ऐसे कैसे कर सकते? शायद की लाख गलतियों के बाद जो तुम वापस इसके पास लौटना चाहती हो, मगर क्यों? ऐसा क्या है जवान में ऐसा कुछ नहीं है, मगर यह हकीकत है, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं इससे दूर रहकर भी इसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई और इसकी लाख खताओं के बावजूद नफरत नहीं कर पाई। और मैं ये जानती हूँ मोमन, आप मुझसे बेखौफ मोहब्बत करते, मगर मोमन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, ला हासिल के पीछे भागने से सवाई अज़ियत और तकलीफ के कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि मोमन, ज़रूरी नहीं जिस चीज़ या शख्स को हम ख्वाहिश करें वो हमें मिले। हमारी ज़िंदगी हमारी लाख ख्वाहिशात ला हासिल रहती हैं, इनमें हमारी मसलत नहीं होती है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, शायद तुम किस चीज़ की ख्वाहिश करो तुम्हारी मसलत में इस ना हो। इसलिए मोहम्मद, बस इतना कहूँगी कि हासिल की तमन्ना करना छोड़ दो और इस चीज़ का इंतखाब करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो और मेरे अल्लाह ने इसको तुम्हारे नसीब में लिखी हो। मुझे उम्मीद है मेरी बात पर तुम गौर करोगे। एक बार फिर मोहम्मद हासिल की तलाश में टूट बिखर गया था। आज दोबारा से इसके जख्म ताज़ा हो गए थे। इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वाली की किसी बात को जवाब दे और बगैर कुछ कहे अली के चेहरे पर नजर जमाए कुछ देर खड़ा देखता रहा और फिर आंखों में फैली नीमी को साफ करते हुए पलट कर मायूस कदमों से बाहर का रुख किया। इंसान की लाखों ख्वाहिशात होंगी, मगर वो ला हासिल ख्वाहिशात इंसान के अंदर से छोड़ कर रख देती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। हमारे दिल के हर किसी कोने में याद बनकर दफन हो जाती है। हकीकतन किसी शय की ख्वाहिश करना या सहाने ख्वाब देखना तो बहुत आसान होते हैं और हम ख्वाबों को दुनिया में न जाने कहाँ से कहाँ चल जाते हैं, मगर इन सुहाने ख्वाबों की तामीर हम नावाकिफ होते हैं। जब ये ख्वाब टूटते हैं, कुछ ख्वाहिशात लाहासिल हो रहती हैं, तो इंसान इस कदर टूट बिखर जाते हैं कि किसी हमारे अंदर वजूद को जख्मी कर देती हैं और जब तक वो जख्म नहीं बढ़ते इंसान बहुत ज़्यादा अजीत है। वो कमरे में बैठा मुसलसल अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रहा था और गुस्से में अगर कमरे में मौजूद हर शय को बिखेर देता, वही ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए मुसलसल अपनी किस्मत को कोस रहा था। अचानक इसे कान में आवाज़ गूंजती है, ला हासिल के पीछे भागोगे तो सवाए रोने के कुछ हासिल नहीं होगा। तो इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी? इस पाक ज़ात ने इसको कभी तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं है। आखिर क्यों नहीं हो सकती? मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? मैंने तो आज तक अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखा, कभी गलत निकाह से देखा तक नहीं। फिर क्यों मेरे रब ने इसे मेरे नसीब में नहीं लिखा? देखा मोमन, बेशक इस बात से
पाक की हर फैसले में मसलहत हो चुकी है, जिससे हम अनजान होते हैं और सोचो रब जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। बस तुम ज़िंदगी की दौर में आगे बढ़ो, हासिल की तलाश छोड़ दो और इस इंसान को अपनाओ जिसको मेरे रब ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। फिर देखना तुम अपनी किस्मत से जितने गिले शिकवे हैं ये किसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाते हैं। मगर मैं इस हाल में कौन अपनाएगा, कौन एक टूटे हुए शख्स को हाथ थामेगा, कौन औरत ये जानते हुए भी कि मेरे दिल में कोई और लड़की थी मुझे कबूल करेगी। मोमन नीम आंखों से रोते हुए कहता है, एक नहीं हज़ारों ऐसी होंगी जो ला हासिल की तलाश में टूट बिखर चुकी होंगी। इनको भी किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत होगी। और फिर ये ज़िंदगी का नाम ही कंप्रोमाइज़ का है, जिसमें बहुत सी बातों और चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ता है, दूसरों की खुशी के लिए जीना पड़ता है। और फिर देखना ज़िंदगी कितनी रंगीन और खूबसूरत दिखाई देती है। और मुझे उम्मीद है तुम इन बातों पर ज़रूर गौर करोगे। और मोमन की आंखों के सामने चेहरा गायब हो जाते हैं, जो इसके बच्चों की तरह एक उस्ताद होने की हैसियत से समझा रहा था। मोमन एकदम चमक उठता है और इधर देखते लगता है, फिर खुद को नॉर्मल हालत में लाते हुए उठकर बेड पर चल जाते हैं और बेड की क्राउन से टेक लगाकर नीम आंखों को मूंद लेते हैं। हारा जानी मैं आयशा को लेने जा रही हूँ, इसकी छुट्टी का वक्त हो गया और वापसी पर बाजार में जाना है, कुछ ज़रूरी सामान लेना है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। आले तेजी से फाहरा बेगम बताती हुई जल्दी से बाहर जाना बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, अपने ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। फाहरा बेगम अपने कमरे में बैठी तस्वीर बढ़ रही थी जब मुलाजमान दरवाजा पर दस्तक देकर कमरे में दाखिल होती है। बेगम साहिबा, देवरान साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम ड्राइंग रूम में बैठा, मैं आती हूँ। जी बड़ी बेगम साहबा। वो मुलाजमा उल्टे कदम बाहर को रुख करती है। ये जवार अब मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? खैर आप बात करके ही पता चलेगा। फाहरा बेगम दिल ही दिल में खुद से सवाल करती उठकर ड्राइंग रूम की तरफ रुख करती है। अस्सलाम वालेकुम। फाहरा बेगम संजीदा अंदाज में सलाम करती है और सोफे बैठ जाती है। वालेकुम सलाम। दरअसल मैं जो आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मैं आलिया को अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहता हूँ और अपने हर उस गुनाह को कफारा अदा करना चाहता हूँ जो मुझसे जाने जाने में हुआ। तो मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें। ज़ेवार शर्मिंदगी के मारे नजर झुकाकर कहता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए आलिया आपकी बेटी है, आपसे बहुत प्यार करती है, मुझे उम्मीद है वो आपकी बात ज़रूर मानेगी और इनकार नहीं करेगी। वैसे भी शादी के बाद बेटियों का असल घर ससुराल ही तो होता है। वो सराजुद्दीन न करता गुनाह का इल्जाम लगाकर घर से बेदखल किया था। एक शोर को अपनी बीवी का मुहाफिज बनने के बजाय इसके सर से छत तक छीन ली। फाहरा बेगम ज़फ़ी अंदाज में कहती हैं, देखिए मैं मानता हूँ मुझसे न सिर्फ गलती बल्कि गुनाह हुआ है, मगर यकीन करें मैं हकीकत से लाइलम था। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता था। जो हुआ वक्त के हालात ने करवाया। ज़बरान हंसी अंदाज में कहते हैं, फिर वक्त के फैसले को भी तस्लीम कर लो आलिया। अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, खुला लेना चाहती है। फाहरा बेगम इतना ही बोल पाती है। मोहम्मद जो बाहर खड़ा बातें सुन रहा था तेजी से कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, माँ जी आलिया खुला नहीं लेना चाहती, वो ज़बरान के साथ अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? फाहरा बेगम तेजी से पूछती है। ठीक कह रहा हूँ, ये आली का फैसला, मुझे इसके फैसले को इतराज़ नहीं, बस मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मोहम्मद बमश्किल मुस्कुराते बाहर का रुख करते हैं और मोहम्मद की बातें सुनकर ज़बरान के चेहरे पर उम्मीद की किरण नहीं आती और फाहरा बेगम जैसे चुप सी लग गई थी। शाम को वक्त जब आलिया मुस्कुराती हुई बेटी के हमरा घर में दाखिल होती है और अपने कमरे की जाने बढ़ रही थी। फाहरा बेगम गुआ से रुक जाती है। जी खाला जान, आपने बोला? हाँ मेरे घर में, हाँ मेरे कमरे में आओ, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी ठीक है। आयशा बेटा आप कमरे में जाओ, मैं बस नानों की बात सुन कर आती हूँ। आलिया मुस्कुराते हुए प्यार से आयशा के गाल थपथपाते हुए कहती है और फिर खुद फाहरे के कमरे का रुख करती है। जी खाला जान, सब यही थे ना? हाँ बेटा आओ, बैठो तो मेरे पास। जी खाला जान। आलिया फाहरा बेगम के पास बैठते हुए कहती है, देखो बेटा तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी यार दुख सुख माँ से ज़रूर शेयर करती है। बेटा आज ज़बरान आया था, वो चाहता है तुम इसको माफ़ करके इसके साथ ज़िंदगी का नया सिरा शुरू करो। क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? आलिया डरते हुए बगैर कुछ बोले फाहरा बेगम जाना देखती है। बेटा डरो नहीं, जब बात दिल में है अपनी माँ से कहो। फाहरा बेगम आली के चेहरे पर फेरी उदासी देकर कहती हैं, जी खाला जब मैं ज़बरान के साथ अपने घर जाना चाहती हूँ, इसमें मेरी बेटी आयशा की खुशी है और आयशा की खुशी में मैं खुश हूँ। प्लीज़ खाला जान मुझे माफ़ कर दें, इस दफ़ा फिर मेरे मोमन को आपके दिल आज़ारी की। आलिया रोते ही फाहरा बेगम का हाथ पकड़ कर कहती है, पगली दिल आज़ारी वाली कोई सी बात है? तुम अपनी बेटी की खुशी में खुश हो ना? मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। फाहरा बेगम आली की आंखों में आंसू साफ करते प्यार से जा देती है। आप सच कह रही हैं ना खाला जान? आप नाराज़ नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, बेटियों से भला माँ ही नाराज़ हो सकती है। इस दफ़ा मैं अपनी बेटी को दिल से दुआओं की छाँव से रुखसत करूँगी। और बेटा मुझे माफ़ कर दें, मैं तुम्हारी खुशी को नज़रअंदाज करके मोमिन की खुशी तलाश करती थी, मगर मैं गलती। खुशी तो नसीब से मिलती है, ला हासिल शे आपको कभी हासिल नहीं हो सकती, चाहे जितने जतन कर लें। पता है हमेशा मिलता वही है जो पाक ज़ात ने हमारे हिस्से में लिखा होता है। बिल्कुल खाला जान आप ठीक कह रही हैं और प्लीज़ मुझे से माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आलिया फाहरा बेगम के हाथ पर प्यार से बोल देते हुए कहती है, जीती रहो मेरी बच्ची।
देवराज जब भारा बेगम की कॉल करने पर आलिया को लेने आया था, डाइनिंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद आलिया आती है और के पास खड़े जरबार के पास साथ खड़े होते हुए पूछती है, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं आली, बस सोच रहा हूँ वो पाक ज़ात कितनी मेहरबान है ना, मुझे एक इस रात मुस्तकीम से भटके हुए शख्स को सीधा रास्ता दिखाया। और आली मिला हासिल की खोज में इस कदर अंधा हो गया था, बेटी की उम्मीद को नहीं समझ पाया। मैंने रहमत को ज़हमत समझा, कमज़ोर रिश्ता समझा। मैं भूल गया जिस रब से ला हासिल की तमन्ना कर रहा हूँ, इसकी ही रहमतों की नकदरी भी कर रहा हूँ। ताली और अब मुझे खुश कैसे हो सकता था, मुझसे खुश कैसे होता था? मैंने अपने जिगर के टुकड़े को कमज़ोर समझा और यूँ समझा कि बेटे के बगैर हमारे खानदान की बुनियाद कमज़ोर है। तो देखो इस पाक ज़ात की कदर, इसने एक गुनाह के बदले मुझे हकीकत से आगाह किया कि इसकी दी गई रहमत की नकदरी के बाद घर घर नहीं बल्कि एक वीरान के दहाना है। ज़बान रोते हुए मुसलसल बोले जा रहा था और आलिया खामोश खड़ी बस सुन रही थी। आली, तुम कुछ नहीं बोलोगी? ज़बान आली को दोनों बांध से पकड़कर अपने करीब खड़े करते हुए पूछता है। मैं बस इतना कहूँगी जावी, बेटी कमज़ोर रिश्ता नहीं है, बेटी तो वो मुकद्दस रिश्ता है जो वालिदैन की इज्जत की खातिर सारी ज़िंदगी खुद को दाम कर रखती है। अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा जाती है। बेटी कमज़ोर नहीं होती, बस हिस्सास होती हैं। इन्हें वालिदैन से प्यार और मुकम्मल एतमाद की ज़रूरत होती है। पता है जावी, जब वालिदैन बेटियों के साथ होते हैं वो कमज़ोर नहीं पड़ती बल्कि बड़ी बड़ी मुश्किलात का डट कर मुकाबला करती हूँ, हर मैदान में कामयाबी हासिल करती हैं। ठीक कह रही हो आली, बस हम मशरक़ी लोगों को इस बात को समझने होता है, इसकी नकदरी करते हैं, हासिल के पीछे भागते हैं। हम इस रिवाज को बदलना होगा, बेटी को मुकाम देना होगा जो मेरे रब ने दिया है। और मेरा वादा है कि आली, तुमसे मैं आयशा को अपना बेटा बनाऊंगा, इसको इतना प्यार दूंगा कभी कमज़ोर न पड़े। और मैंने खुदा के दिए पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। मैं कभी हासिल की ख्वाहिश नहीं करूंगा बल्कि हासिल पर खुदा का शुक्र अदा करूंगा। जवार आलिया के सर से सर टकराते हुए कहते हैं। आली भी आंखों में नीली मुस्कुरा देती है, मगर उसकी आंखों में अब खुशी की आंसू आया थे। रो क्यों रही हो अब पागल लड़की, शुरू से पागल हो तुम किस्म से? जवान आली को छेड़ते हुए कहते हैं, जावी तंग नहीं करो मुझे। आलिया मुँह दूसरी तरफ करते हुए मुँह बनाकर कहती है, तुम मुझे तंग नहीं करूँगा तो किसको करूँगा बताओ? मेरी ज़िंदगी हो तुम। आलिया जवरान आली का मुँह अपनी तरफ करते हुए उसके माथे पर प्यार से अपने लब रखते हुए कहते हैं। आलिया शर्मा कर नजर झुका देती। इतने में आयशा मुस्कुराती हुई आई और मैं माँ बाप को यूं करीब देखकर केक लगाती है। आलिया और जवरान तेजी से 2 कदम दूर हो जाते हैं और दौड़कर जवरान के पास आती है और जवरान की टांगों के साथ चिपक जाते हैं। जवरान में मुस्कुराते हुए आयशा को उठाकर साथ लगाते हैं। आलिया दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती है। जवरान की तरफ से दिल मुस्कुराती है। कौन कहते हैं बेटियां वो होती हैं, ये कमज़ोर होती हैं? बेटियां तमाम खलक होती हैं जो वालदान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत बहादुर होती हैं, बस इन्हें प्यार तवज्जो की बेहद ज़रूरत होती है। जवरान, आपसे एक बात करनी थी। आलिया गाड़ी में बैठी जवरान से मुखातब थी। हाँ आली बोलो। जवरान गाड़ी ड्राइव करते पूछा। जावी, मैं चाहती हूँ हम अम्मी जान को साथ लेकर घर जाएं, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे कभी भी इस बात की गवाही नहीं देता कि हमारी माँ औलाद के होते हुए भी यूँ ओल्ड हाउस में गुजारे। हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए। जारी औलाद का हक होता है वालिदैन के बुढ़ापे में खिदमत करना कि ओल्ड हाउस मुंतकिल कर देना। हाँ ठीक कह रही हो, मगर आली अगर मगर कुछ नहीं, हमारी माँ है और दिल में जो भी गिले शिकवे हैं ख़त्म कर दो। हमें अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाने हैं। माजी तलख लम्हात को बुलाकर आली जरवार के साथ हाथ पर हाथ रख कर के प्यार से कहती है। जरवार भी मुस्कुराते हुए हाँ में सुनाते और गाड़ी का ओल्ड हाउस की तरफ जाना करते हैं। 1 साल बाद मोमन ने इस लड़की को अपनाया था जो यतीम थी, जिसकी इस दुनिया में खुदा के सिवा कोई नहीं था। मोमन की बेइंतहा मोहब्बत के बदले वो लड़की जो अपनी किस्मत को खोजती थी, गिले शिकवे करती थी, अब इस किस्मत पर रक्श करती थी और खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की तस्वर करती थी। मोमन भी बहुत खुश था, वह माजी को भूल चुका था। अब मेहरो ही इसकी ज़िंदगी और मोहब्बत थी। मेहरो किधर हो यार, देखो अयान रो रहा है। मोमन ने रोते हुए अयान को गोद में लेते हुए मेहरो को आवाज़ दी, जो किचन में अयान का फीडर तैयार करती है। आगी मेहरो दौड़ती हुई आई। अयान को भूख की वजह से रोता देखकर मुस्कुरा कर कहती है, मम्मा जान इतना भूख लगी है, मम्मा सदके जाए। मोमन गोद में लिए अयान को गोद में लेटाते हुए कहती है, अयान जो अभी 1 माह का था, मुहतरमा सिर्फ मामा की जान नहीं बाबा की भी जान है। इसमें समझी मोमन प्यार से मेहरो की छोटी नाक को खींचते कहते हैं, सी मोमन के बच्चे छोड़ूंगी नहीं आपको, बस अयान सो ले। मोमन का सिर्फ एक ही बच्चा है अभी, जिसमें मेहरो साहबा की अपनी जान है। मोमन आंख दबाते हुए कहते हैं। मेहरो शर्मा कर नीचे मुँह करके मुस्कुरा देती है। सच कह रहे हैं, किसी ने ला हासिल की अशिया सिर्फ तकलीफ के सिवा कुछ नहीं हासिल किया, इसलिए हासिल पर ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बेशक ये अमल बेहतरीन अमल है। यहाँ पर हमारा ये नावल हुआ कंप्लीट। कैसा लगा आपको? अच्छी स्टोरी थी।